Hello students, this is Bhagya sir. Today we shall proceed with our prose section. The lesson we are going to do is lesson number 5 from your English textbook, and the name of the lesson is 100 Dresses Part 1, written by L. Soar Esther. The lesson has got 2 parts, and today we shall go with part 1. About the author. L. Soar Esther was an American children's author. L. Soar Esther ज़्यादातर बच्चों के लिए लिखते थे. She was born in West Haven, Connecticut, as Eleanor Ruth Rosenfeld. Her notable works were Ginger Pie, The 100 Dresses, the Moffat's series. Now, what is this lesson about? The 100 Dresses is a story of a quiet and shy Polish girl named Wanda Petronsky. ये एक वेंडा पेट्रोन्स्की नाम की सीधी सादी शाय लड़की की कहानी है. A new immigrant to America. ये लड़की पोलैंड से अमेरिका आई हुई है अपनी फैमिली के साथ. This girl is feeble in comparison to the other girls in an American school where she has taken admission. अमेरिका की जिस स्कूल में इसको एडमिशन दिया कराया जाता है, उस स्कूल की लड़कियां काफी फॉरवर्ड होती है, काफी मॉडर्न होती है. Compared to the other these girls, Wanda Petronsky was very shy and very timid girl. After reaching school, Wanda understands that she is different from the other students of the school who are rich and belong to the high society of America. Wanda को स्कूल में एडमिशन के बाद पता चलता है कि भाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां उससे कई आगे है, कई बाबत को लेके. However, she still does not lose her confidence and try to prove herself with her talent. इसके बाद भी वेंडा अपना कॉन्फिडेंस खोती नहीं है और अपने आप को अपनी टैलेंट के जरिए प्रूव करना पसंद करती. दिस स्टोरी शोज हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन हेल्प अस टू एडजस्ट टू एवरी सिचुएशन. ये स्टोरी हमें बताएगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की हेल्प से हम किसी भी एडवर्स सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं. लेट्स प्रोसीड विद द लेसन. टुडे Monday, Wanda Petronsky was not in her school seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 30. Monday का दिन है. Wanda Petronsky अपनी सीट पर नहीं है स्कूल में, लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया है. 2 लड़कियां, Peggy and Madeline, जो ज्यादातर वेंडा की मजाक उड़ाते रहते हैं, उन्होंने भी इस बात को नोटिस नहीं किया है. वेंडा जनरली क्लास में रूम नंबर 13 में लास्ट सीट पर बैठना पसंद करती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वेंडा जिस जगह पर बैठती थी, जनरली वहां ऐसे लड़के बैठा करते थे जिनको पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट और धमाल मस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है. Those were the kind of indisciplined boys. The corner of the room where there was most coming of feet. ये वो एरिया था क्लास का जहां ज्यादातर फीट की आवाज सुनाई देती थी. Most roars of laughter when anything funny was said. हंसी के ठहाकों की आवाज आती थी जब क्लास में कुछ भी फनी कमेंट या जोक वगैरह होता था. And most mud and dirt on the floor. ये वो जगह थी जहां आपको ज्यादातर फ्लोर पे डर्ट और मड नजर में आता था. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Wanda वहां इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी उन लड़कों की तरह rough and noisy थी. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. ये वो लड़की थी जो बिना किसी काम के कुछ भी बोलना पसंद नहीं करती थी. And nobody had ever heard her laugh out loud. और हंसना तो बहुत दूर की बात थी, उसको कभी किसी ने ठहाके लगा के हंसते हुए भी सुना नहीं. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. अगर उसको कोई चीज पसंद नहीं आती थी
तो उसके चेहरे पे ट्विस्टेड स्माइल आता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat. किसी को पता नहीं था कि वेंडा लास्ट रो पर क्यों बैठती थी, unless it was because she came all the way from Bogin side and her feet were usually naked with dry mud. वेंडा जिस एरिया से आती थी स्कूल में, उस एरिया का नाम था बोगिन साइट। अब बोगिन साइट वो एरिया था जहां इकोनॉमिकली पुअर क्लास के लोग रहा करते थे, और जब भी वो स्कूल में आती थी तो उसके पैर भी मड से लदे हुए होते थे। But no one really thought much about Vanda Petronsky once she sat in the corner of the room. वेंडा पेट्रोन्स्की जब अपनी सीट पर आके बैठ जाती थी तो उसके बाद कोई वेंडा को ज्यादातर नोटिस करता नहीं था। The time when they thought about Vanda was outside of school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began. वेंडा के बारे में क्लास की लड़कियां तभी सोती थी जब स्कूल शुरू होने के पहले का टाइम होता था, जब वो लोग स्कूल में आते थे, और दूसरा वो वक्त होता है जब स्कूल खत्म होती थी और वो लोग घर जाते थे। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. जब लड़कियों के ग्रुप्स स्कूल में से घर जाते हुए या स्कूल में आते हुए दिखाई देते थे स्कूल यार्ड। Then sometimes they waited for Vanda to have fun with them. कुछ लड़कियां ऐसी होती थी कि स्कूल के बाहर वेंडा के आने की वेट करती थी ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए। The next day, Tuesday, Vanda was not in school either. दूसरा दिन ट्यूसडे था और उस दिन भी वेंडा स्कूल में नहीं आई थी। And nobody noticed her absence again. उस दिन भी किसी ने उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। But on Wednesday, Peggy and Mary, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. लेकिन Wednesday मतलब थर्ड डे पैगी और मैरी ने वेंडा की एब्सेंस को नोटिस किया। ये वो लड़कियां थी जो आगे की बेंच पर बैठती थी, अच्छे मार्क्स लाती थी और उन बेंच पर बैठना प्रीफर नहीं करती थी जहां ये मड वाला एरिया होता। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी स्कूल में बहुत जानी मानी एक लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, काफी खूबसूरत थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। वो हमेशा स्कूल में नए कपड़े पहन के आती थी, उसके जो हेयर थे वो कर्ली थे। मैरी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैरी जो थी वो उसकी बहुत करीबी दोस्त। The reason Peggy and Mary noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. आज वेंसडे के दिन मैरी और पैगी ने उस एब्सेंस को नोटिस किया। इसका रीजन ये था कि वेंडा की वजह से दोनों स्कूल में आज लेट पहुंची थी। They had waited and waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come. स्कूल के यार्ड के बाहर ये दोनों लड़कियां उसकी वेट करती रही, और जब बहुत वेट करने के बाद वेंडा नहीं आई तो दोनों क्लास में पहुंची और लेट पहुंची, जिसकी वजह से उन्होंने नोटिस किया कि आज तीसरा दिन है तो वेंडा स्कूल में नहीं आई। They often waited for Vanda Petronsky to have fun with her. इसी तरह से वो लोग कई बार स्कूल यार्ड के बाहर खड़े रह के वेंडा की वेट करते थे ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए और कुछ फन पैदा किया जाए। Vanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. वेंडा पेट्रोन्स्की रूम नंबर 13 के स्टूडेंट के लिए एक अजीब सा नाम था। They had names easy to say. बाकी लड़के लड़कियों के नाम बहुत आसान थे बोलने में और सुनने में भी, like Thomas, Smith और Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny. Willie Bounce नाम का एक लड़का था क्लास में, और रूम नंबर 13 के स्टूडेंट सोचते थे कि ये नाम काफी फनी सा है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज। लेकिन वेंडा पेट्रोन्स्की जितना वो फनी नाम नहीं था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। क्लास में और इवन स्कूल में वेंडा के कोई खास फ्रेंड नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो हमेशा अकेली स्कूल में आती थी और घर भी अकेली चली जाती।
She always wore a faded blue dress that didn't hang right. हमेशा वो एक हल्का सा ब्लू कलर का ड्रेस पहन के आती थी और जो उसके बॉडी के ऊपर फिट नहीं होता था, काफी ढीला ढाला ड्रेस होता था. इट वॉज क्लीन, वो ड्रेस काफी क्लीन होता था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली. ये ड्रेस क्लीन तो था लेकिन काफी शेबी था, काफी क्रम्पल्ड था, लग रहा था कि किसी ने इसको आयरन नहीं किया है आज तक. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. वैसे देखा जाए तो वेंडा का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती. Sometime they surrounded her in the schoolyard and she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कई बार वेंडा जब स्कूल की छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉच का गेम खेलते हुए देखती थी तो बहुत सारी लड़कियां उसके इर्द गिर्द आके खड़ी रहती थी. And they tried to talk to her in one way or the other. Vanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Miss Mason जो थी वो इनकी टीचर थी और मिस मैसन के साथ बात करते वक्त जितना शालीनपना दिखाया करता था उसी शालीनपने के साथ पैगी वेंडा को पूछती थी. क्या पूछती थी? वेंडा, she would say, giving one of her friend a nudge. हल्का सा कंधे से धक्का देके मजाकिया स्वर में किसी दूसरी लड़की को वो वेंडा से पूछती थी, Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? बताओ वेंडा, आपके घर के कबर्ड में आपके पास कितने ड्रेसेस पड़े? 100, वेंडा वुड से. वेंडा बताती थी कि उसके पास 100 ड्रेस है. 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100 all lined up, said Vanda. वेंडा बताती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस है और मेरे क्लोजेट में, मेरे कबर्ड में वो एक लाइन में लगे हुए हैं. Then her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Peggy मजाक करने के अंदाज में पूछती थी कि क्या वो सारे सिल्क के ड्रेसेस है? Yeah, all silk, all colors. वेंडा का आंसर आता था कि हाँ, सारे सिल्क ड्रेसेस है और सारे कलर के. Velvet too? Yeah, velvet too. 100 dresses. Vanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. Then they would let her go. इतना करने के बाद वो वेंडा को चले जाने के लिए अनुमति देते थे. And then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. जैसे वेंडा उनसे अलग होके चलना शुरू करती थी और थोड़ी दूर पहुंचती थी, ये जितनी भी लड़कियां वहां इकट्ठी होती थी और सब ठहाके लगा के हंसने लगती थी जैसे कि वो वेंडा का मजाक उड़ा रही. 100 dresses. Obviously, the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. आज तक इन लड़कियों ने वेंडा को सिर्फ एक ही कलर का ड्रेस पहने हुए देखा था और वो भी फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस जो हर रोज स्कूल में पहन के आती थी. So why did she say she had 100? What a story! How many shoes did you say you had? अभी 100 ड्रेसेस के पीछे क्या कहानी है वो किसी को पता नहीं था. कई बार वेंडा को उसके शूज के बारे में पूछा जाता था. ऐसा क्वेश्चन कि हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? 60 pairs all lined up in my closet. वेंडा बताते कि मेरे पास 60 pairs पड़े हैं शूज के और वो सारे मेरे क्लोजेट में एक लाइन में रखे हुए हैं. Cries of exaggerated politeness greeted these. All alike? Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thought of this game and Mary, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy और Mary हमेशा वो लड़कियां थी जो स्कूल में सबसे आखिर में निकलती थी घर जाने के लिए. Finally, Vanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her lap shoulder every now and then in the funny way she had. Finishing
the walk to school alone. Peggy was not really cruel. Peggy क्रूअल लड़की नहीं थी, निर्दयी लड़की नहीं थी, किसी को परेशान करने में वो मजे में किस्म की लड़की नहीं थी. She protected small children from bullying and she cried for us if she saw an animal mistreated. वो हमेशा अपने से छोटी लड़कियों को उन लोगों पर धौंस जमाने वाले लोगों से बचाती रहती थी. And she cried for us if she saw an animal mistreated. किसी एनिमल को अगर कोई इल ट्रीट करता है तो वो रोना शुरू कर देती थी. If anybody had said to her, "Don't you think that it is a cruel way to treat Vanda?" she would have been very surprised. अगर कोई उसको पूछता था कि क्या वेंडा को इस तरह से परेशान करना सही है, तो सरप्राइज होकर वो उनके सामने देखती रहती थी. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? क्यों वो लड़की बताती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है? Anybody could tell that was a lie. कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है. Why did she want to lie? और वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? And she wasn't just an ordinary person. Else why did she have a name like that? और मुझे लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी किस्म की लड़की नहीं है. देखो उसका नाम भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वेंडा पेट्रोंस्की. Anyway, they never made her cry. उनकी मजाक उस हद तक नहीं चाहती थी कि वेंडा को रोना पड़े. As for Mary, this business of asking Vanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that was bothering her. मैरी वो लड़की थी जो पैगी का इस किस्म का वेंडा का मजाक उड़ाना वो अंदर से पसंद नहीं करती थी. मैरी वॉज पुअर हरसेल्फ. मैरी खुद एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी. शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंडमेड डाउन क्लोथ्स. ज्यादातर वो ऐसे कपड़े पहना करती थी जो दूसरों ने ऑलरेडी पहने हुए थे और उनको या तो गिफ्ट में या तो डोनेट करके दिए हुए. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिंग साइट्स और हैव फनी नेम्स. अगर उसके पास कोई चीज थी जो उसको इस इल ट्रीटमेंट से दूर रख सकती थी तो वो ये थी कि वो बोगिंग साइट जैसे इकोनॉमिकली पुअर एरिया से नहीं आती थी और उसका नाम भी फनी नहीं था, वेंडा पेट्रोंस्की की तरह. Sometimes when Peggy was asking Vanda those questions in that mocking polite voice, Mary felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Vanda exactly. कई बार जब पैगी वेंडा का मजाक उड़ाती थी तो मैरी अपने आप को वेंडा की जगह महसूस करती थी और पैगी का साथ देने के बजाय वो अपने हाथ में रहे मार्बल के साथ खेलती रहती थी और उस मजाक का हिस्सा नहीं बनती थी जो पैगी वेंडा का मजाक उड़ाने में लेती थी. She would never have paid any attention to Vanda if Peggy hadn't invented the dress game. वो वेंडा की ओर कभी ध्यान नहीं देती अगर पैगी ने एक ड्रेस गेम का खेल शुरू नहीं किया होता. But suppose Peggy and all the others started in on her next. क्या हो सकता है अगर पैगी और दूसरी लड़कियां वेंडा को छोड़ के उसका मजाक उड़ाने लगे? She wasn't as poor as Vanda. Of course वो उतनी पुअर नहीं थी जितनी वेंडा पेट्रोंस्की थी, but she was poor. लेकिन ये हकीकत थी कि वो उन रिच लड़कियों में शामिल नहीं हो सकती थी जो पैगी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. वो इतनी मूर्ख नहीं थी कि वेंडा की तरह लोगों को कहती फिरे तो उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. She wished Peggy would stop teasing Vanda Petronsky. और उसकी एक दिली तमन्ना थी कि पैगी वेंडा पेट्रोंस्की की मजाक उड़ाना बंद करे. Today, even though they had been late to school, Mary was glad she had not had to make fun of Vanda. आज वो स्कूल में लेट जरूर हुए थे लेकिन मैरी को एक संतोष था कि वेंडा के नहीं आने से
उसका मजाक बनने से बन गया, चूक गए। She worked her arithmetic problem absent-mindedly. 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Brenda how many dishes she has." कई बार मैरी का मन किया कि वो पैगी को एक लेटर लिखे, इसमें वो बताए कि वेंडा की मजाक उड़ाना हम बंद कर दें, लेकिन वो उसमें इतनी करेज नहीं थी कि पैगी के आगे वो इतना बोल सके। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. क्योंकि उसकी करेज नहीं थी पैगी को मुंह पर बोलने की, इसलिए उसने एक नोट लिखना शुरू किया। Suddenly she paused and shuddered. अचानक वो रुक गई और shuddered मतलब डर गई, घबरा गई। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girl. अपने आप को उसने वेंडा की जगह देखा, लड़कियां उसके इर्द गिर्द खड़ी रहकर उसकी मजाक उड़ा रही है, वो भी उसके दिमाग में ऐसा पिक्चर आया। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Mary would have to say it was one of Peggy's old ones that Mary's mother had tried to disguise with new trimming, so no one in room 13 would recognize it. Peggy ने अपने आप को मैरी की जगह वेंडा की जगह पाया, मैरी ने अपने आप को वेंडा की जगह पाया, और पैगी वहां उसको पूछ रही है कि है ये ड्रेस कहां से आया। तब वो बता नहीं पाएगी कि ये ड्रेस उसी पैगी का है, पुराना ड्रेस, तो उसकी मदर ने कुछ ट्रिमिंग करके उसका लुक थोड़ा चेंज किया ताकि रूम नंबर 13 में उसको कोई पहचान न पाए। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Mary ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly Mary tore into bits and bits the note and had started. अगर पैगी खुद इस मजाक को बंद करना चाहे तो ये पॉसिबल है, otherwise there is no other way to stop Peggy teasing Wanda. She was Peggy's best friend. Madeline of Mary Peggy की बेस्ट फ्रेंड थी, and Peggy was the best like girl in the whole room. और पैगी वो लड़की थी जिसको सब एक मान सम्मान की दृष्टि से रूम में देखते थे। She was not only good looking, but she was highly intelligent. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. मैरी ने एक वक्त ऐसा भी सोचा कि पैगी का इतना मान सम्मान है, लोग उसको इतना पसंद करते हैं, तो पैगी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins and stood alone in the schoolyard. Wanda के लिए उसकी इतनी सोच थी कि बोगिंस साइड में रहने वाली एक लड़की है और स्कूल यार्ड में कभी-कभी अकेली खड़ी रहती। She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about 100 dresses. अगर वेंडा को बोलती हुए सुना जाता था तो वो तभी जब उसको 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता था। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimming. And she remembered another that was brilliant, jungle green with a red sash. You would like a Christmas tree. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. कई बार वेंडा को उन ड्रेसेस की बात करते सुना जाता था जब ये लड़कियां उसकी मजाक उड़ाते थे, तब जो उसको एक क्रिसमस ट्री जैसा लुक देता था। You can see here in the picture, she was talking about that dress which made her look like she has worn Christmas tree. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest for girls. This contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. स्कूल में कंपटीशन रखी गई थी, ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें लड़कियों को एक डिजाइनर ड्रेस तैयार करना था, वे फिलिंग कलर, और लड़कों को
मोटर बोट की डिजाइन तैयार करने। Probably Peggy would win the girls' medal. पैगी ये कंपटीशन जीत जाएगी गर्ल्स की ओर से, ऐसा सबको लगता था। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी का जो ड्राइंग था वो रूम में किसी भी लड़के या लड़की से अच्छा ड्राइंग था। At least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. पैगी ड्राइंग करने में इतनी पावरफुल थी कि मैगजीन में देख के किसी का भी पिक्चर वो ड्रॉ कर सकती थी। किसी भी फिल्म स्टार का जो फेस ड्रॉ करेगी और उस फेस को देख के कोई भी पहचान लेगा ये सो एंड सो फिल्म स्टार है। Oh, Maggie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. Then they would know. कल तो रिजल्ट अनाउंस होने वाला ही था और सबको पता चल जाएगा कि ड्राइंग कंपटीशन कौन जीता। The next day it was drizzling. दूसरे दिन हल्की सी बारिश हो रही थी। Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Maddie और Peggy दोनों Peggy के अम्ब्रेला के नीचे बारिश से बचते हुए स्कूल की ओर आ रहे थे। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Vanda Petronsky on the corner of Oliver Street. इन दिनों में मतलब जब बारिश के दिन होते थे तब Peggy और Maddie वेंडा पेट्रोस्की की वेट नहीं करते थे ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े रह के। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल लेड टू डॉगिंग साइड। ये वो जगह थी जहां से वो वेंडा को ज्वाइन करते थे और उस जगह से लेके स्कूल तक आते आते वो वेंडा की मजाक उड़ाते रहे। और आज वो वहां नहीं खड़े हैं क्योंकि आज हल्की बारिश हो रही है और स्कूल जल्दी पहुंचना जरूरी है। Anyway, they were not taking chances on being late today. आज वो लेट आने की चांस लेना नहीं चाहते थे because today was important. क्योंकि आज का दिन बहुत important दिन। Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. Peggy ने पूछा मैडी को कि आपको लगता है कि मिस मैसन आज रिजल्ट अनाउंस करेगी? Oh, I hope so. The minute we get in, said Mary. जैसे ही हम क्लास में जाएंगे हमें रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। Of course you will win, Pat. At the same time मैडी बताती है कि ये कंपटीशन तो तुम ही जीतोगी। Hope so, said Peggy eagerly. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. जैसे ही ये लोग क्लासरूम में एंटर होते हैं दोनों अचानक से रुक जाते हैं, दोनों का मुंह खुला ही रह जाता है और रूम की चारों ओर वो देखने लगते हैं। What was that? There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling color and brilliant, lavish design, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them. जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, दीवारों पर, खिड़कियों पर, सीलिंग के ऊपर, सब जगह पे ये 100 ड्रेसेस टंगे हुए मिलते हैं इनको। और इनमें जो कलर्स लगे थे वो डैजलिंग कलर थे, ब्रिलियंट कलर थे और वो डिजाइन थी वो भी काबिले तारीफ, लेविश सॉर्ट ऑफ डिजाइन, ऑल लाइंड अप। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट। दोनों को लगा कि ये शायद वो ड्राइंग थे जो कॉन्टेस्ट के लिए इकट्ठे किए गए। There were everybody stopped and whispered or murmured admiringly. क्लास में सब लोग इन पिक्चर की तारीफ कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, फुसफुसा रहे थे एक दूसरे के साथ। You could see some drawings on the screen. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. जैसे ही मिस मैसन क्लास में आते हैं पूरा क्लास अपनी अपनी जगह पर बैठ जाता है। जैक बैगल्स had won for boys. मिस मैसन अनाउंस करती है रिजल्ट कि लड़कों की ओर से जैक बैगल्स ने फर्स्ट प्राइज जीता है। She said, and is designed for an outdoor motor boat on exhibition in room 12. और उसके द्वारा डिजाइन की गई मोटर बोट की जो पेंटिंग है, पिक्चर है, उसको रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन में रखा गया। Along with the sketches by all the other boys. और दूसरे लड़कों के पिक्चर भी वहां लगाए गए। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most.
जहां तक लड़कियों का सवाल है, लड़कियों की ओर से, हर एक लड़की की ओर से ये क्या दो स्केचेस हमें सबमिट कराए गए हैं. One girl and room number 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. मिस मैथन अनाउंस करती है कि लड़कियों में एक लड़की ने हमें 100 पिक्चर सबमिट किए और 100 के 100 पिक्चर डिफरेंट पिक्चर्स हैं, ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, कलरफुल पिक्चर्स हैं. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस के ओपिनियन के मुताबिक एनीवन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. इन 100 में से एक पिक्चर को भी हम सिलेक्ट करें तो बाकियों के द्वारा सबमिट कराए गए पिक्चर से वो बेहतर पिक्चर है और जीतने के काबिल है. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls' medal. और मिस मैथन तो सरप्राइज ऑफ ऑल अनाउंस करते हैं कि ये पिक्चर वेंडा पेट्रोन्स्की द्वारा सबमिट कराए गए हैं और गर्ल्स की ओर से वो ही विनर है. You could see here Wanda Petronsky making the drawing of various dresses. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. मिस मैथन अनाउंस करते हैं कि वे वेंडा कुछ दिनों से आई नहीं है और ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि आज वो ये क्लैपिंग सुनने के लिए, अप्लॉज सुनने के लिए यहाँ हाजिर नहीं है जो आज उसके काबिल है. Let us hope she will be back tomorrow. हम आशा रखते हैं कि कल वो हमें ज्वाइन करेगी. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing. मिस मैथन सूचना देती है कि अब आप हर एक ड्राइंग को बारीकी से देख सकते हैं अलग अलग जगह जाके. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stand on the floor. सब लोग खुशी के मारे हुटिंग करने लगे और उसमें लास्ट बेंच पर बैठने वाले लड़के भी थे जो फ्लोर पर अपने पैरों को थपथपाने लगे. Put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. उनको मजा आ गया. ड्रेस देखने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें वो मजे करेंगे. Look back, whisper Mary. That is the blue one she told us about. Isn't it beautiful? मैरी पैक को बोलती है कि देखो पैक, ये वो ड्रेस है जिसके बारे में वेंडा हमें बताती थी, वही ब्लू ड्रेस. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here is the green one, boy. And I thought I could draw. और देखो वो ग्रीन ड्रेस जो उसके बारे में वो जिक्र करती थी, जिसको हम क्रिसमस ट्री का नाम देकर उसका मजाक उड़ाते थे. Well, friends, this is the end of part 1. Soon we shall meet with the concluding part, and that is part 2 of this lesson.